Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 26 of the course Network Security. We are discussing how to incorporate security in different parts of the network. Let us first have a look on what we have discussed in our previous lecture. So here is the summary. In previous lecture, we continued our discussion on authentication applications, and more precisely, we talked about Kerberos in detail. There are mainly two applications that are used for authentication, that is Kerberos and X.509. So we have discussed Kerberos, and we have seen how different versions of Kerberos they are implemented to ensure security, and there are certain vulnerabilities and threats to which Kerberos is also exposed, and applying Kerberos and networks ensure certain features that ensure the ongoing communication will be secured and will be in a safe environment. We also talked about X.509, which makes use of certificates, and these certificates are issued by Certification Authority CA. So recall where we discussed the concept of certificates. In daily life, when we receive a certificate, so the certificate tells that we are entitled for a certain course or for a certain program or for a certain degree, and the certificate is usually signed by relevant authorities. Usually these are program chairs, or if you are in a university, so university vice chancellor and things like that. So exactly the same concept is applied in computers, networks and network security, and certificates are issued. But these are not paper certificates, these are digital certificates. And these digital certificates are issued only by certain certification authorities. Not all the organization, not all the parties, not you and me can issue certificates, but there are relevant, dedicated, fixed, well-known certification authorities whose responsibility, whose job is to issue certificate. So I also gave you an example that if you are about to start a company, a web-based company who will be doing some online transactions, some money transactions, so a certificate needs to be issued for your company. So you will request a certification authority, and the certification authority will issue a certificate. So any customer that want to do a transaction with your company, with your website, he or she will first check the certificate. If there is a certificate for your website, then the customer will feel confident and will feel secure and will do the transaction. We've also seen that there are certain websites where you go and there comes an error message appears that the certificate could not be retrieved for this particular website. Would you like to proceed? And based on what you decide, you can either click proceeding yes or you can deny. So certification authorities, they issue certificates. What do these certificates actually have? They have got few fields like serial number, version, signature algorithm, name of the certification authority, digital certificates, and the validity, period of validity. So each certificate has got these and plus a few more pieces of information that are there. Remember, the certificates remain valid for certain duration. They have validity. For example, in daily life, if you have completed a training, then there is a duration for the validity of that course, that training. For example, if you carry on practice for next 2 or 3 years, this certificate will remain valid, and after that you have to renew the certificate. So same is the case here. So the certificates, there are validity dates. The validity dates could be different from few months to several months, from few days to several days.
There is also one-way authentication, two-way authentication, and three-way authentication that we discussed in detail in X.509. So X.509 and Kerberos, these are the two main authentication applications that are widely being used. So there are some more details about Kerberos that we discussed in our previous lecture. Let us have a look on how Kerberos work in this particular slide. This will remind us the exact functionality and the working of Kerberos. So you can see that there are mainly three entities. One is a server, an application server, which is serving a website, which is serving a file. It could be a file transfer server, it could be a DHCP server, it could be a web server, a bank server. So an application server is one entity. Then we have second entity, user and its workstation, two entities. And the third entity is Kerberos itself. The Kerberos is comprised of three further components. Number one is authentication server. Number two is ticket granting server, TGS. And number three is the database. So the database, the AS and the TGS, together these three components make one Kerberos. So one Kerberos system is also deployed here. So here we have got mainly three entities in this scenario: workstation, application server, and Kerberos. So user want a secure communication with that application server. Maybe the user wants to download a file or to upload a file in a secure way. So how will Kerberos work? Very simple, and there are 6 steps involved that tell us the functionality and the working of Kerberos. The first one is user logs on to a workstation and request service on host. Okay, so first of all, user would like to obtain something from the application server, but before the server entertains the workstation, before the server replies to the workstation needs to be authenticated. So in order to authenticate this workstation, Kerberos will be involved. So what actually happens is that the authentications, the request goes to the Kerberos system, the whole Kerberos. So the authentication servers, the AS, verifies user access rights in database. So the Kerberos server, it checks which username has been used, what are the privileges for these users. These details are already there in the database. Then the authentication server creates ticket granting ticket and a session key. So ticket granting ticket is requested or initiated, and a session key is initiated by this authentication servers. The ticket has not been actually issued. The ticket will be issued by ticket granting server, TGS, but only the authentication server is creating a ticket and a session key and sending back to the workstation. So 2 steps. First, workstation has requested something. Its details were matched from the server, from the database. Now the Kerberos authentication server has created a ticket granting ticket, a ticket and a session key, and replied back to the workstation. In the third step, the workstation prompts user for password and uses password to decrypt incoming message. The authentication has sent something to this workstation. The user gives its username and password to decrypt the message, and once the message is decrypted, then sends ticket and authenticator that contains username and network address and time to TGS. So in third step, the workstation is creating or is generating an authenticator. What is this authenticator? The authenticator has got 3 things: username, network address, and time to TGS. So these 3 things have been created in the authenticator.
Now these three things will be passed on to the TGS, because server is going, TGS, the ticket granting server, is going to initiate a ticket that ticket will only be workable for that particular workstation. So in 4-step, the ticket granting server decrypts the ticket and authenticator. And remember what were the details in authenticator? Username, network address, and time. Okay, so these three details are there in the authenticator. So the TGS has decrypted that, verified the request, and then actually create the ticket for requested server. So this ticket has now been created, and this ticket which has been created by the TGS will remain only valid for that particular IP address and for that particular application server. 4 steps. In the 5th step, workstation sends ticket and authenticator to the server. Up till now, the server was not contacted directly by the workstation. In 5th step, the server is directly being contacted by the workstation, and the workstation has actually sent the ticket and the authenticator. Again, the authenticator had username, network address, and TGS. So these three details were first sent to TGS by the workstation. Now these three details and the ticket are being sent by the same workstation to the actual server. And in the 6th step, the server verifies that ticket and authenticator match. Both the ticket and authenticate, these values match. And if there is a matching, then grants access of service. So once these details have matched, later on, after that, after the successful match, the server grants permission, the server grants resources, the server grants access to whatever service that was requested by the workstation. So if mutual authentication is required, server returns an authenticator. There could be a 7th step as well, but not necessarily. That 7th step could be optional. That 7th step may or may not be involved. Up till now, the server has compared the ticket with the authenticator. If both values matches, that's fine. The workstation has been authenticated. But if the workstation also wants to authenticate this application server, then the 7th request is generated from this server to the workstation, in which the server creates its authenticator, and server add its username, its IP address or network address, and the TGS, and send to the workstation. So this is the 7th step, involves the two-way authentication for the server on the workstation. So it may not be required. Most of the time the workstation needs to be authenticated, so we usually apply these 6 steps. So that was the working of how Kerberos work, and what are 6 different steps involved in order to authenticate a workstation to the server. As you have seen that this workstation, the user cannot directly request the server, because server can no longer trust the direct request. The request should come from the Kerberos, and the Kerberos actually works as a trusted party and ensures that the workstation who has requested to the server is actually a legitimate user and not a attacker. Outlines of today's lecture. We are going to talk about SET, Secure Electronic Transaction, in today's lecture, and we will see there are different participants for SET, there are different requirements for SET, and there are different features for SET. The concept of dual signature will also be discussed. The signature needs to be verified. How the verification of signature actually occurs, this is also going to be the part of our today's lecture. The objectives of today's lecture are, hopefully by the end of today's lecture, you would be able to present an understanding of the transaction that is carried out over the internet. How do you do transaction? How do you do money transaction?
whenever there is money involved, how you actually do that? Definitely we need a very much secure way. We need a trustworthy way in which the customer who is doing some money transaction on the internet can do it securely. So the other objective of today's lecture is you would be able to demonstrate knowledge about different entities and their role in the secure electronic transaction. Let us have a look on what actually secure electronic transactions is. As the name indicates, these are electronic transactions. These are transactions, these will involve money, but that is going to be electronic transaction. Means that you will not be sending some money, some paper money. मतलब हम ये देखते हैं कि एक हमारे पास पेपर मनी है करेंसी नोट्स की सूरत में, जो कि हमारे पॉकेट्स में होती है, जो कि हमारे हाथ में होती है. एक है आपकी इलेक्ट्रॉनिक मनी, ठीक है. एक है आपकी इलेक्ट्रॉनिक मनी, ऑनलाइन बैंकिंग जैसे हम कहते हैं, जहां पे आपने आपकी नोट्स, आपकी करेंसी इलेक्ट्रॉनिक मनी में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं. लेट्स से आपने अपने किसी दोस्त को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके कुछ पैसे भिजवा दिए, या जो है वो आपको कुछ पैसे रिसीव हो गए आपके बैंक अकाउंट में. अब ये बैंक अकाउंट में फिजिकल पैसे रिसीव नहीं होते, फिजिकल नोट, टच होने वाले नोट रिसीव नहीं होते जिनको आप छू सकें, या कागजी नोट आपको रिसीव नहीं होते, बल्कि ये आपको इलेक्ट्रॉनिक मनी की सूरत में रिसीव होते हैं. आजकल आप देख सकते हैं कि मोस्टली चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मनी की तरफ जा रही हैं. ठीक है, हमारे पास जो बैंक कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, ये भी इलेक्ट्रॉनिक मनी को शो कर रहा है. ठीक है, मेरा बैंक कार्ड है, सिर्फ एक कार्ड है, लेकिन अगर उसको एक्चुअली देखा जाए तो उसमें अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं तो वो कार्ड में एक्चुअली 1 लाख रुपए हैं और 1 लाख रुपए तक की शॉपिंग मैं उससे कर सकता हूँ. इसी तरह आजकल बड़े बड़े स्टोर्स पर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मनी को प्रेफर किया जाता है. क्यों? इलेक्ट्रॉनिक मनी को संभालना आसान है. इलेक्ट्रॉनिक मनी को आपको अनलाइक करेंसी नोट पर्स में नहीं संभाल के रखना पड़ता. ठीक है, और आप देख सकते हैं कि आपके अगर वॉलेट में ढेर सारे करेंसी नोट्स जमा हो जाए तो आपका वॉलेट बहुत बढ़ जाता है और उसको संभालना मुश्किल हो जाता है. और इसके अलावा अगर आप बाकी दुनिया में भी देखें तो बाकी दुनिया में भी जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे तो कैश मनी का या पेपर मनी का कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है और मोस्टली चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मनी पर हैं. सो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हमने करनी है, लेकिन हमने सिक्योर तरीके से करनी है. सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है? मैंने आपको अगर कुछ पैसे देने हैं और आप मेरे सामने हैं, ठीक है, तो मैं गिन के चंद नोट आपके हाथ में दूंगा, आप उन नोटों को दोबारा देखेंगे, गिनेंगे, और इस तरीके से हमने अपनी ट्रांजैक्शन मुकम्मल कर ली. लेकिन अगर आप और मैं दुनिया के 2 मुख्तलिफ कोनों में बैठे हैं और मैंने आपके लिए कोई पैसे भिजवाने हैं, ना आप मुझे देख सकते हैं, ना आप पैसों को देख सकते हैं और ना आप पैसों को छू सकते हैं, इस केस में सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कैसे होगी, इसको आज के हम लेक्चर में देखते हैं. सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन बताता है ओपन इंक्रिप्शन एंड सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन है. ठीक है, जिसमें ढेर सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे, कस्टमर होगा, मर्चेंट होगा, बैंक होगा, इशूअर जिसको कहते हैं. ठीक है, ये सारी ट्रांजैक्शन जब होती है तो कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व हैं, कुछ इंक्रिप्शन टेक्निक्स इन्वॉल्व हैं. ये सारी चीज़ें मिलकर सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन सेट को बनाती हैं. याद रखिए, जब हम ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमने सिक्योर इस सेंस में करना है कि मैं जब आपको देख नहीं सकता और आप दुनिया के दूसरे कोने में हैं और मैंने अगर आपको कुछ पैसे भिजवाने हैं, सो मैंने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि बीच में अटैकर कोई इस ट्रांजैक्शन को रिट्रीव ना कर ले. अटैकर ऐसा ना हो कि पैसे आपके अकाउंट में जाने के बजाय किसी अटैकर के अकाउंट में चले जाएं. सो हमें इसको सिक्योर करना बड़ा ज़रूरी है और यही सेट आपको ये सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स बताता है कि आप सिक्योरली कैसे एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन
ये स्पेसिफिकेशन है प्रोटोकॉल्स की, इंक्रिप्शन की। ये क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस की गई 1996 में। और इसको किसने बनाया? इसको मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड वालों ने इसको डेवलप किया। ये पेमेंट सिस्टम नहीं है, ठीक है, कि आपने लाइक 1000 रुपये भेजे हैं किसी दोस्त को तो उसके दोस्त को 1000 रुपये मिलेंगे, प्लस आपने ऊपर कोई 400-500 रुपये या आपने 40-50 रुपये सर्विस चार्जेस दिए। पेमेंट सिस्टम ये नहीं है, लेकिन ये स्पेसिफिकेशन बताता है कि कौन से पार्टिसिपेंट्स इसमें आ सकते हैं, किस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे अटैक हो सकता है, कहाँ पे इनक्रिप्शन की ज़रूरत है। ठीक है, सो ये सेट में ये सारी डिटेल्स मौजूद हैं। सो एक्चुअली सेट क्या है? सेट ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और फॉर्मेट्स है। जैसा मैंने पहले कहा कि इसमें स्पेसिफिकेशन है, डिटेल्स हैं। इसमें क्या डिटेल्स हैं? दो पार्टीज के दरमियान सिक्योर ट्रांजैक्शन कैसे होगी, सिक्योर कम्युनिकेशन कैसे होगी। ठीक है, प्रोवाइड्स ट्रस्ट बाय द यूज ऑफ X.509 वर्जन 3 सर्टिफिकेट्स। ठीक है, इसमें सर्टिफिकेट्स का यूज होता है। सर्टिफिकेट्स में आपने जैसा पिछले लेक्चर में देखा कि सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट्स इंश्योर करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट या मैसेज, डिजिटल डॉक्यूमेंट या जो मैसेज एक यूजर की तरफ से आया ये वैलिड है, जेन्युइन है, मॉडिफाइड नहीं है, रेक्टिफाइड नहीं है, वगैरह वगैरह। सो X.509 का वर्जन 3 जो है ये सेट में इस्तेमाल होता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में। प्राइवेसी बाय रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन टू दोज हु नीडेड। सेट प्राइवेसी भी इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेट्स से अगर मैंने ट्रांजैक्शन की, सिक्योर ट्रांजैक्शन की और आपको कुछ पैसे भेजे, और मैं अगर चाहता हूं कि मेरा नाम डिस्क्लोज ना हो, बाकी लोगों को पता न चले कि मैंने कुछ ट्रांजैक्शन करके आपको कुछ पैसे भिजवाए हैं, सो ये प्राइवेसी भी इंट्रोड्यूस करता है और सिर्फ उन लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है जिसकी आप इजाज़त देते हैं कि ठीक है, इन लोगों को पता चलना चाहिए कि मैंने ट्रांजैक्शन किया, बाकी सबसे हाइड होना चाहिए। सो सेट आपको ये डिटेल्स भी प्रोवाइड करता है। सबसे पहले देखते हैं सेट के पार्टिसिपेंट्स। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि आपको मेनली 6 एंटिटीज नजर आ रही हैं। 6 एंटिटीज नजर आ रही हैं। कार्ड होल्डर, इशुअर, बैंक हो सकता है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी CA, एक्वायरर, पेमेंट गेट 5 और मर्चेंट 6। ठीक है, और ऑब्वियसली ये चूंकि ट्रांजैक्शन आप इंटरनेट से कर रहे हैं, सो ये सारे लोग इंटरनेट से ही कनेक्टेड हैं। अब इस टपोलॉजी में आप देख सकते हैं कि कार्ड होल्डर लेट से दुनिया के किसी एक कोने में बैठा है और इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी का जो सर्वर है वो दुनिया के दूसरे कोने में पड़ा हुआ है। बैंक जो है वो कार्ड होल्डर जिस कंट्री में है उस कंट्री में भी हो सकता है या किसी दूसरी कंट्री में भी हो सकता है। मर्चेंट वो एंटिटी है जिससे आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है, आपने जिससे खरीदो फरोख्त करनी है। इसी तरह पेमेंट गेटवे है जो कि इंश्योर करेगा कि कितनी पेमेंट जानी चाहिए। तो ये 6 एंटिटीज हैं जो कि सेट के पार्टिसिपेंट्स हैं। आइए इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले सर्टिफिकेट अथॉरिटी, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी एक इदारा है जो कि सर्टिफिकेट्स इशू करता है। हर कोई सर्टिफिकेट्स इशू नहीं कर सकता, बल्कि दुनिया के मखसूस सर्टिफिकेशन इदारे हैं, सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ हैं जिनका काम सर्टिफिकेट्स इशू करना है। यही सर्टिफिकेशन अथॉरिटी कार्ड होल्डर्स को भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, मर्चेंट्स को भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है और पेमेंट गेटवे को भी सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करती है। मतलब कार्ड होल्डर, मर्चेंट और पेमेंट गेटवे, इन तीनों का आपस में ट्रस्ट डेवलप करने के लिए सर्टिफिकेशन अथॉरिटी इन तीनों को सर्टिफिकेट्स देती है। मैं मर्चेंट पर ट्रस्ट नहीं कर सकता कि मर्चेंट ऐसा ना हो कि मेरे कार्ड से पैसे ले ले और जो है वो आइटम्स ना भेजे। मर्चेंट मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा ना हो कि वो आइटम्स भेज दे और ट्रांजैक्शन उसको पैसे वसूल ना हो। ठीक है, इसी तरह पेमेंट गेटवे भी। तो इन तीनों एंटिटीज का ट्रस्ट डेवलप करने के लिए बीच में एक थर्ड पार्टी है, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, जिस पे कार्ड होल्डर भी ट्रस्ट कर रहा है, जिस पे पेमेंट गेटवे भी ट्रस्ट कर रहा है, जिस पे मर्चेंट भी ट्रस्ट कर रहा है।
सो ये तीनों को सर्टिफिकेट्स इशू करती है, और जो भी ट्रांजैक्शन होगी कार्ड होल्डर से मर्चेंट की या कार्ड होल्डर से की ट्रांजैक्शन पेमेंट गेटवे से होते हुए मर्चेंट की जाएगी, ये सारी की सारी सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने जो सर्टिफिकेट्स इशू किए होंगे उनके थ्रू ये ट्रस्ट की जाती है। अगर किसी ट्रांजैक्शन में, किसी मैसेज में कोई सर्टिफिकेट नहीं है, डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं है, इस पर कोई ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये ट्रांजैक्शन एबॉर्ट कर दी जाती है, इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। सेकंड, हमारे पास जो एंटिटी है वो है मर्चेंट। मर्चेंट वो एंटिटी है जो कि आइटम्स सेल आउट कर रहा है, ठीक है। ईबे आप कह सकते हैं, एक ईबे तो शायद ज़्यादा मुनासिब एग्जाम्पल नहीं होगी। लेट्स से एक वेबसाइट है जिससे आप कोई गिफ्ट आइटम ख़रीदते हैं, ठीक है, या हमने अक्सर आजकल वेबसाइट्स देखी हैं, ठीक है, जैसे आप कोई डिफरेंट गिफ्ट आइटम्स ख़रीदते हैं। सो मर्चेंट हो सकते हैं। मर्चेंटशिप का रिलेशनशिप होता है एक्वायरर के साथ, ठीक है। एक्वायरर वो एंटिटी है जो कि एक्वायर करती है कि किसने ट्रांजैक्शन की है और किसके लिए की है, ठीक है। सो मर्चेंट का रिलेशनशिप एक्वायरर के साथ होता है। मर्चेंट का रिलेशनशिप डायरेक्ट कार्ड होल्डर के साथ होना जरूरी नहीं है। तीसरा है इसके अलावा पेमेंट गेटवे। जिस एंटिटी के थ्रू, जिस गेटवे के थ्रू, जिस गेट के थ्रू पेमेंट होकर जाएगी, किसके दरमियान पेमेंट, एक्चुअली पैसे तो बैंक के पास पड़े हैं, ठीक है। तो बैंक से पैसे जो है वो मर्चेंट तक जाने हैं, ये कैसे जाएंगे, ये पेमेंट गेटवे के थ्रू जाते हैं। सो पेमेंट गेटवे इज एन इंटरफेस, ये एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है किसके दरमियान, इस होल फिनोमेना सेट के दरमियान और बैंक कार्ड का जो पेमेंट नेटवर्क है, ठीक है। आप देख सकते हैं पेमेंट नेटवर्क है बैंक कार्ड का, आप अपने बैंक को पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। बाज बैंक्स ऐसे हैं जिनके कार्ड्स को आप पूरी दुनिया में यूज कर सकते हैं, तो उनका पेमेंट का नेटवर्क है। सो उनके बैंक कार्ड के पेमेंट नेटवर्क के दरमियान और सेट के दरमियान एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है पेमेंट गेटवे। इसके अलावा आपके पास एक्वायरर है। एक्वायरर क्या करता है, प्रोवाइड्स ऑथराइजेशन टू मर्चेंट दैट गिवन कार्ड अकाउंट इज एक्टिव एंड परचेज डज नॉट एक्सीड कार्ड लिमिट, ठीक है। एक्वायरर क्या कर रहा है, ऑथोराइज कर रहा है कि भाई ये कार्ड नंबर है, हाँ इस कार्ड नंबर के अगेंस्ट ये कार्ड नंबर एक्टिव भी है और इसको जो अपर बैलेंस है वो लेट से 10,000 रुपए है, तो ये 10,000 रुपए तक की शॉपिंग कर सकता है। अब मर्चेंट को नहीं पता कि जो कार्ड नंबर मुझे कार्ड होल्डर ने दिया है, कार्ड नंबर तो ठीक है, लेकिन उसको ज्यादा से ज्यादा जो वो शॉपिंग कर सकता है वो 20,000 रुपए की है, ठीक है, जबकि उसकी कार्ड की जो लिमिट है वो 20,000 रुपए है, लेकिन वो जो शॉपिंग कर रहा है वो 20,000 से एक्सीड कर रही है। सो इस चीज को कौन ऑथोराइज करता है, आपका एक्वायरर इस चीज को ऑथोराइज करता है कि कार्ड एक्टिव है, ये भी चेक करता है कि इनएक्टिव कार्ड्स तो नहीं है। इनएक्टिव कार्ड्स वो होते हैं जो कि ब्लॉक कर दिए जाते हैं या जिनकी एक्सपायरी डेट करीब आ जाती है, ये एक्सपायर्ड हो जाते हैं। सो एक्टिव का मतलब है फंक्शनल वर्किंग कार्ड है, वर्किंग बैंक कार्ड है, और उस बैंक कार्ड की लिमिट कितनी है, ये चीज कौन इंश्योर करता है, आपका एक्वायरर। सेट की मजीद रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, सेट की मजीद रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सो प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेमेंट एंड ऑर्डरिंग डाटा, दैट इज सेट यूजेस एन्क्रिप्शन टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियलिटी। मैंने किसी वेबसाइट से परचेजिंग की है, लेट्स से मैंने किसी गिफ्ट वेबसाइट से कोई गिफ्ट आइटम परचेज किया है। अब मैं चाहता हूं कि अब जाहिर है मेरी ट्रैफिक चूंकि इंटरनेट से होकर जाएगी एंड आई डोंट वांट कि ये चीज पब्लिसाइज हो कि मैंने क्या आइटम परचेज किया है, ये कौन सा आइटम मैंने कितनी मिकदार में परचेज किया। सो आई वांट दिस इंफॉर्मेशन टू बी कॉन्फिडेंशियल, कि मेरे अलावा जो है वो, या मेरे और मर्चेंट के अलावा कोई और इसको रीड ना कर सके, किसी और के लिए ये इंफॉर्मेशन रीडेबल ना हो। तो इसके लिए सेट कॉन्फिडेंशियलिटी को इंट्रोड्यूस करता है, और कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव करने के लिए इंक्रिप्शन कोई यूज करता है। कोई भी इंक्रिप्शन यूज की जा सकती है, कोई भी सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है, आपने क्लासिकल साइफर्स पढ़े हैं, बाकी चीजें। सो कोई भी इंक्रिप्शन टेक्निक वो यूज करते हुए यूजर की जो डिटेल्स हैं, यूजर का जो ऑर्डरिंग डेटा है, क्या उसने ऑर्डर किया है, ठीक है, उसको वो इनक्रिप्ट कर देता है। सो कॉन्फिडेंशियलिटी भी इंश्योर कर रहा है सेट, और इंटेग्रिटी भी इंश्योर कर रहा है।
इंटेग्रिटी कैसे इंश्योर करता है? इंटेग्रिटी ऐसे इंश्योर करता है कि द इंटेग्रिटी ऑफ ऑल ट्रांसमिटेड डाटा दैट इज डिजिटल सेट आर यूज टू प्रोवाइड इंटेग्रिटी, डिजिटल सिग्नेचर्स आर यूज टू प्रोवाइड इंटेग्रिटी। डीएस हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, डिजिटल सिग्नेचर्स। सो कार्ड होल्डर ने जब कोई ट्रांजैक्शन की है तो कार्ड होल्डर का डाटा भी कॉन्फिडेंशियल हो गया, और न सिर्फ कॉन्फिडेंशियल हुआ बल्कि इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए कि कोई इस इंफॉर्मेशन को, इस डाटा को मॉडिफाई ना कर सके। ऐसा ना हो कि आपने ऑर्डर किए हैं 2 आइटम्स और कोई अटैकर उसको मॉडिफाई करके 20 आइटम्स का ऑर्डर प्लेस कर दे। ठीक है, तो इस चीज को कैसे सेट इंश्योर करता है? डिजिटल सिग्नेचर्स यूज करता है। सो कार्ड होल्डर का डिजिटल सिग्नेचर उसके ऑर्डरिंग डाटा के साथ जाता है, जो उसने ऑर्डर किया है उसके ऑर्डर के साथ उसका डिजिटल सिग्नेचर भी जाता है। सेट ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी प्रोवाइड करता है, इंटेग्रिटी भी प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड करता है। ऑथेंटिकेशन कैसे प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन दैट कार्ड होल्डर इज अ लेजिटिमेट यूजर ऑफ अ कार्ड एंड अकाउंट। अब मेरा कार्ड आप यूज ना कर सकें, या आपका कार्ड मैं यूज ना कर सकूं, या हम दोनों के कार्ड कोई और बंदा यूज ना कर सके, इस चीज को भी सेट इंश्योर करता है। सेट का यह काम भी है कि ऑथेंटिकेट करे कि कार्ड होल्डर जो कि डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है ये यही है या कोई और यूजर है। ये भी हो सकता है कि मेरा कार्ड कहीं पे गुम गया, ठीक है, अब मेरा कार्ड जिसके हाथ लगा वो तो आसानी से उसका 16 डिजिट कोड पढ़ रहा है, पीछे उसका 3 डिजिट कोड लिखा हुआ है वो भी पढ़ रहा है, ठीक है, कार्ड नंबर तो ठीक है, ठीक है, लेकिन यूज करने वाला ठीक नहीं है। यूज करने वाला वो यूजर नहीं है जिसके हाथ कार्ड लगा है। लेजिटिमेट यूजर वो है जो ऑनर है इस कार्ड का, ठीक है। सो ये भी इंश्योर करता है। कैसे इंश्योर करता है? अ मैकेनिज्म दैट लिंक्स द कार्ड होल्डर टू अ स्पेसिफिक अकाउंट नंबर reduces the incident of fraud and uses digital signature and certificate for verification. So 3-4 चीजों की कॉम्बिनेशन से सेट इंश्योर करता है कि ऑथेंटिकेशन है और कार्ड यूज करने वाला लेजिटिमेट यूजर है और ऑनर है, जिसके लिए वो कार्ड होल्डर का स्पेसिफिक अकाउंट नंबर के साथ उसको एसोसिएट कर देता है। अकाउंट नंबर के साथ एसोसिएट कर देना ढेर सारे फ्रॉड्स को रोक लेता है। और इसके अलावा जैसा मैंने बात की कि डिजिटल सिग्नेचर्स और सर्टिफिकेट भी यूज कर सकता है। एक और चीज जो सेट इंश्योर करता है वो है फैसिलिटेट एंड इनकरेज इंटरऑपरेटेबिलिटी अमंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर प्रोवाइडर्स। आप जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे थे सो आपके सिस्टम पे लेट से विंडोज 7 थी और आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे थे। बैंक का जो सिस्टम है वहां पे जो कंप्यूटर्स हैं उधर कोई परहैप्स लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होगा। आप हो सकता है इंटेल की मशीन यूज कर रहे हो, यहां पे हो सकता है एचपी की मशीन्स यूज हो रही हो या सन के सिस्टम्स पड़े हों। इसी तरह मर्चेंट जो कंप्यूटर यूज कर रहे हो सकता है वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ठीक है। सो कार्ड होल्डर के दरमियान, इशूअर के दरमियान, बैंकर के दरमियान, मर्चेंट के दरमियान, गेटवे के दरमियान ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हैं। हर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान इंटरऑपरेटेबिलिटी चेक करना ये भी सेट की रिक्वायरमेंट है। सो आप देख सकते हैं कि ये 4 मेन सेट की रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा मजीद क्या सेट इंश्योर करता है? प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन दैट अ मर्चेंट कैन एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस थ्रू इट्स रिलेशनशिप विद अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। Card holders should be able to identify merchant and digital signatures and certificates can be used. कार्ड होल्डर को ऑथेंटिकेट करना ये भी सेट का काम है, इस पूरे सेट के कॉन्सेप्ट में है। इसके अलावा मर्चेंट को ऑथेंटिकेट करना ये भी सेट का काम है, सेट की रिक्वायरमेंट है। अब आप लेजिटिमेट यूजर भी हैं, कार्ड भी आपका है, आपके कार्ड में पैसे भी हैं, लेकिन आप जब परचेजिंग करना चाहते हैं मर्चेंट से तो आपकी परचेजिंग नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि मर्चेंट जो है वो जो क्रेडिट कार्ड आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस कंपनी का क्रेडिट कार्ड सपोर्ट नहीं करता। लेट्स से आपके पास
मास्टर कार्ड है और मर्चेंट जो है वो सिर्फ अमेरिकन एक्सप्रेस एक्सेप्ट कर सकता है। सो यहाँ पे ये मिसमैच आ गया। इसको कौन इंश्योर करता है? इंटेग्रिटी कौन इंश्योर करता है कि जो कार्ड नंबर कार्ड होल्डर का है वो मर्चेंट एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, इसको इंश्योर करना ये भी सेट की रिक्वायरमेंट है। और सेट ये रिलेशनशिप देखती है कि मर्चेंट की रिलेशनशिप क्या है पेमेंट गेटवे के साथ या एक्वायरर वगैरह के साथ, और इसके लिए डिजिटल सर्टिफिकेट्स और सिग्नेचर्स यूज किए जा सकते हैं। इंश्योर द बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड सिस्टम डिजाइन टेक्निक्स टू प्रोटेक्ट ऑल लेजिटिमेट पार्टीज। हमने 6 पार्टीज देखी थी इस पर्टिकुलर स्लाइड में। हमने 6 पार्टीज देखी हैं, कार्ड होल्डर, इशुअर, एक्वायरर, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, पेमेंट गेटवे, मर्चेंट। इन सब को सिक्योर करना, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करना, इन सब के सब को सिक्योर करना, एक दूसरे से भी सिक्योर करना और बाहर के अटैक से भी सिक्योर करना, ये सेट की रिक्वायरमेंट है, ये सेट का ऑब्जेक्टिव है। और लास्टली, सेट क्रिएट अ प्रोटोकॉल दैट नीदर डिपेंड्स अपॉन द ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी मैकेनिज्म नॉर प्रिवेंट्स देयर यूजेस। सेट एक अपना प्रोटोकॉल यूज करता है, एक यूनिक सा प्रोटोकॉल यूज करता है जो रूटीन के प्रोटोकॉल्स हैं उनसे हट के काम करता है, और एक उस प्रोटोकॉल की वजह से ये जितनी भी पार्टीज हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, ये आपस में सिक्योर तरीके से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सेट के कुछ की फीचर्स हैं जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया। सेट कॉन्फिडेंशियलिटी भी प्रोवाइड करता है, इंटेग्रिटी भी प्रोवाइड करता है, कार्ड होल्डर के अकाउंट की ऑथेंटिकेशन भी करता है, कार्ड होल्डर को भी ऑथेंटिकेट करता है, मर्चेंट को भी ऑथेंटिकेट करता है। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि इफ आई हैव प्लेस्ड लेट्स से अ गिफ्ट आइटम, I have placed an order of a gift item from a certain website, so I don't want that this particular order, this particular data should be available to everyone. So this is the feature of set that set makes my data confidential. It is only readable to me and to the merchant. The rest of the world, they would be unable to see what's going on and what have I ordered. Integrity of data is also ensured by set, and that is if I have placed 4 items, so set ensures that actually 4 items are ordered and not 40. So in this way set ensures integrity of the data. Set also ensures that the person who is claiming that he is the card holder is actually the card holder. इंश्योर करता है कि किसी ऑनर के अलावा किसी और के हाथ तो कार्ड नहीं लग गया। सो ये भी इंश्योर करना, कार्ड होल्डर को मर्चेंट के लिए ऑथेंटिकेट करना और मर्चेंट को कार्ड होल्डर के लिए ऑथेंटिकेट करना, ये भी सेट का फीचर है। सेट की ट्रांजैक्शन कैसे होगी, आइए अब स्टार्ट करते हैं वो प्रोसेस जिसमें सेट की ओवरऑल ये 6 एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं और ट्रांजैक्शन होती है। सबसे पहले कस्टमर ओपन्स अकाउंट सच एज मास्टर कार्ड और वीजा। ऑब्वियसली अगर आप कार्ड होल्डर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उस क्रेडिट कार्ड कंपनी में सबसे पहले अकाउंट खोलना पड़ेगा। वो क्रेडिट कार्ड कंपनी मास्टर कार्ड भी हो सकती है और वीजा भी हो सकती है। ये 2 फेमस क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं, तो आप इनके साथ एक अकाउंट खोलते हैं सबसे पहले। दूसरे स्टेप में आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट रिसीव होता है। याद रखिए कि ये डिजिटल सर्टिफिकेट है, कोई मैनुअल डॉक्यूमेंट या कोई मैनुअल सर्टिफिकेट आपको रिसीव नहीं होता, बल्कि एक डिजिटल सर्टिफिकेट रिसीव होता है कस्टमर को। सो कस्टमर ने पहले मास्टर या वीजा के साथ एक बैंक अकाउंट खोला या एक अकाउंट खोला, ठीक है, और उसके बाद कस्टमर को एक सर्टिफिकेट रिसीव होता है। सर्टिफिकेट में क्या है, आफ्टर द वेरिफिकेशन receive an X.509 version 3 certificate signed by बैंक। बैंक की तरफ से इसको एक सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट इशू होता है। ये डिजिटल सर्टिफिकेट क्या है, X.509 वर्जन 3 में इसकी डिटेल्स हैं, ठीक है। ये सर्टिफिकेट बैंक ने इशू, बैंक की तरफ से आया है, इशू सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ने किया, लेकिन बैंक ने इसको कस्टमर को दिया। सो कस्टमर रिसीव्स दी
certificate. After that, establish relationship between the customer's key pair and his or her credit card. एक कस्टमर है, एक कस्टमर का अकाउंट है, एक कस्टमर का क्रेडिट कार्ड है. ठीक है, तो कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड हासिल करना है. सो सबसे पहले वो क्रेडिट कार्ड कंपनी मास्टर या वीज़ा में अपना अकाउंट खोलता है. उसको बैंक की तरफ से कस्टमर को एक सर्टिफिकेट आता है. सर्टिफिकेट के बाद एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है कस्टमर का जो प्राइवेट पब्लिक की का पेयर है उसके दरमियान और क्रेडिट कार्ड जो एक्चुअल क्रेडिट कार्ड नंबर है उस क्रेडिट कार्ड के दरमियान एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है. तीसरे स्टेप में क्या होता है, ये कस्टमर की साइड थी. तीसरे स्टेप में मर्चेंट्स के अपने सर्टिफिकेट्स हैं. मर्चेंट्स के 2 सर्टिफिकेट्स हैं, फॉर साइनिंग मैसेज एंड फॉर की एक्सचेंज. जो मैसेजेस मर्चेंट की तरफ से जाएंगे उसके लिए भी सर्टिफिकेट इशू होता है और जो की एक्सचेंज होगा उसके लिए भी सर्टिफिकेट इशू होता है. ऑल्सो हैज द पेमेंट्स गेटवेज पब्लिक की सर्टिफिकेट. मर्चेंट के पास एक तीसरी चीज भी होती है और वो है जो पब्लिक गेटवे था, पेमेंट गेटवे था, उसकी पब्लिक की भी होती है मर्चेंट के पास. ठीक है, कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर. अच्छा, इससे पहले तक हम यहां पे ये चीज इंश्योर करें, एक्चुअली कस्टमर ने अभी कोई ट्रांजैक्शन या कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया और मर्चेंट ने कोई ऑर्डर अभी तक फुलफिल नहीं किया. इन 2 स्टेप्स में सिर्फ ये बताया जा रहा है कि कस्टमर का वैलिड अकाउंट है, उसमें सफिशिएंट पैसे हैं और मर्चेंट वो एक ट्रस्टेड पार्टी है और मर्चेंट जो है वो ऑर्डर फुलफिल करने के लिए तैयार है. 4th स्टेप में एक्चुअली ऑर्डर प्लेस हो रहा है जिसमें कस्टमर कोई गिफ्ट आइटम है या कोई भी चीज है वो परचेज करेगा, पेमेंट करेगा. और ये पेमेंट कैसे होगी ये 4th स्टेप से देखते हैं. सो कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर, ब्राउजिंग मर्चेंट्स वेबसाइट टू सेलेक्ट आइटम्स एंड डिटरमिन प्राइस. लेट्स से आप उसने गिफ्ट वेबसाइट पे गया, उसने फ्लावर्स बुके जो है वो परचेज किया, 500 रुपीज उसकी प्राइस थी, प्लस उसने एक फॉर एग्जांपल क्लॉक थी, कोई वॉल क्लॉक उसने परचेज की, उसकी कीमत 1000 रुपीज थी. सो आइटम सेलेक्ट करता जाता है, उनकी प्राइसेस के अगेंस्ट जो है वो देखता जाता है कितनी प्राइसेस हैं और उसका अपना ऑर्डर प्लेस करता जाता है. कस्टमर देन सेंड्स अ लिस्ट ऑफ द आइटम्स टू बी परचेज टू द मर्चेंट. ठीक है, मतलब उसको पसंद ढेर सारी चीजें आई हैं, फ्लावर बुके भी आया है, वॉल क्लॉक भी आई है, एक खूबसूरत सा पेन भी आया है, कोई बुक भी आई है. ठीक है, ये सारी चीजें उसने ब्राउज की हैं लेकिन एक्चुअली उसने बाय करने हैं कोई 1-2 आइटम या एक आइटम, सिर्फ उसने बुक बाय करनी है या सिर्फ पेन बाय करना है. ठीक है, सो कस्टमर देन सेंड्स अ लिस्ट ऑफ द आइटम्स टू बी परचेज टू द मर्चेंट. मर्चेंट की वेबसाइट पे उसने ब्राउज ढेर सारे आइटम्स किए लेकिन एक्चुअली उसने क्या खरीदना है वो मर्चेंट को लिस्ट बना के भेज देता है. मर्चेंट रिटर्न्स एन ऑर्डर फ्रॉम फॉर्म कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ आइटम्स, देयर प्राइस, अ टोटल प्राइस एंड एन ऑर्डर नंबर. मर्चेंट इसको रिप्लाई करता है. ठीक है, उसमें बताता है कि ठीक है आपने 1 फ्लावर बुके खरीदा, 1 वॉल क्लॉक खरीदी, 1 फ्लावर बुके 1000 रुपीज, 1 वॉल क्लॉक 1000 रुपीज एंड 1 पेन 500 रुपीज. सो अ टोटल ऑफ 2500 रुपीज और एक ऑर्डर नंबर इसको देकर कस्टमर को ये भेज देता है, ऑर्डर फॉर्म एक फॉर्म की सूरत में भेज देता है. अब मर्चेंट को वेरीफाई करना है कस्टमर ने, क्योंकि कस्टमर मर्चेंट को पैसे देने जा रहा है. क्या ये मर्चेंट वाकई एक मर्चेंट है जो बाद में आइटम्स भेजेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई अटैकर बैठे हुए जिसने फेक तस्वीरें लगाई हुई हैं और पैसे ले लेगा और आइटम्स नहीं भेजेगा. सो मर्चेंट को वेरीफाई करना है कस्टमर ने. कैसे करता है? विद ऑर्डर फॉर्म मर्चेंट सेंड्स अ कॉपी ऑफ इट्स सर्टिफिकेट. ठीक है, जो ऑर्डर फॉर्म आया है वो और उसके सर्टिफिकेट्स की एक कॉपी भेजता है. कस्टमर कैन वेरीफाई दैट ही शी इज डीलिंग विद अ वैलिड स्टोर थ्रू दैट सर्टिफिकेट. ये सर्टिफिकेट जो डिजिटल सर्टिफिकेट है
जो कि मर्चेंट को इशू हुआ है, ये इंश्योर करता है कि यस ये कोई बोगस पार्टी नहीं है, ये कोई हैकर नहीं है, ये कोई फ्रॉडुलेंट वेबसाइट नहीं है, बल्कि सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ने इनको एक सर्टिफिकेट दिए हुए है और इस पे ऑर्डर प्लेस करना सेफ है। इसके अलावा ऑर्डर एंड पेमेंट जो है वो सेंड कर दी जाती हैं। जब मर्चेंट वेरीफाई हो गया उसके बाद ऑर्डर फाइनल कर दिया जाता है और पेमेंट जो है वो मर्चेंट को भेज दी जाती है। कैसे? अगले 4 स्टेप्स में ये बताया जा रहा है। कस्टमर सेंड्स बोथ ऑर्डर एंड पेमेंट इंफॉर्मेशन टू द मर्चेंट विद द कस्टमर सर्टिफिकेट। कस्टमर अपना साथ में सर्टिफिकेट नंबर लगाता है, अपना ऑर्डर प्लेस करता है और किस तरीके से वो पेमेंट करना चाहता है ये सारी इंफॉर्मेशन भेजता है। ऑर्डर कंफर्म्स द परचेज ऑफ द आइटम्स इन द ऑर्डर फॉर्म एंड पेमेंट कंटेन्स क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। हमने ऊपर बात की कि पेमेंट इंफॉर्मेशन भेजता है। पेमेंट इंफॉर्मेशन क्या है? पेमेंट इंफॉर्मेशन में उसका 16 डिजिट क्रेडिट कार्ड नंबर है और किस कंपनी ने उसको क्रेडिट कार्ड दिया है, मास्टर कार्ड है या वीजा है, ये इंफॉर्मेशन ये सारी की सारी वहां पे प्रोवाइड करता है। द पेमेंट इंफॉर्मेशन इज इनक्रिप्टेड, कैन नॉट बी रीड बाय मर्चेंट। ये इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन मर्चेंट को नहीं पता चलती, ये इनक्रिप्टेड है, ठीक है। और उसको डिक्रिप्ट करने के लिए मर्चेंट के पास की भी नहीं है। मर्चेंट को ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि क्रेडिट कार्ड का नंबर क्या है। मर्चेंट को सिर्फ उसके अकाउंट में पैसे चाहिए। सो देयर इज नो नीड टू मेक the credit card information or the payment information available to the merchant. The customer's certificate enables merchant to verify customer. पेमेंट इंफॉर्मेशन मर्चेंट को नहीं पता चल रही। जब पेमेंट इंफॉर्मेशन मर्चेंट को नजर नहीं आ रही, वो कैसे ट्रस्ट करे कि जो कस्टमर है ये जेन्युइन कस्टमर है, लेजिटिमेट कस्टमर है या कोई अटैकर है। पेमेंट इंफॉर्मेशन उसको मर्चेंट को दिखानी नहीं है और मर्चेंट को कस्टमर को वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करेगा? कस्टमर का भी सर्टिफिकेट है। जिस तरह मर्चेंट के सर्टिफिकेट ने मर्चेंट को वेरीफाई किया है कार्ड होल्डर के लिए, इसी तरह कार्ड होल्डर का सर्टिफिकेट वेरीफाई कर रहा है। मर्चेंट को इस चीज की तसल्ली हो रही है कि ये कार्ड होल्डर लेजिटिमेट यूजर है। मर्चेंट रिक्वेस्ट पेमेंट ऑथराइजेशन, ठीक है। जब ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गई है, फिर मर्चेंट रिक्वेस्ट करता है 7वें स्टेप में कि भाई ये जो पेमेंट इंफॉर्मेशन आई है जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, जिसको मैं रीड नहीं कर सकता, मैं इसको रीड भी नहीं करना चाहता, इसको ऑथराइज करें प्लीज। इसको देखें कि क्या ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो सकती है, क्या जो क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन इसने प्रोवाइड किया है, क्रेडिट कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट वगैरह वगैरह, ये चीजें ऑथोराइज्ड हैं या नहीं है। सो ये चीजें जाती हैं पेमेंट गेटवे को। पेमेंट गेटवे जो है वो हर कार्ड नंबर के अगेंस्ट या उस कस्टमर के क्रेडिट कार्ड नंबर के अगेंस्ट वेरीफाई करता है कि ये कार्ड एक्टिव है या नहीं है। इसके अलावा इसकी क्रेडिट लिमिट क्या है और बताता है कि ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो सकती है या नहीं हो सकती है। जब ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है, जब पेमेंट गेटवे कंफर्म कर देता है कि कार्ड एक्टिव है, इंफॉर्मेशन भी ठीक है और इसकी क्रेडिट लिमिट के अंदर अंदर ये शॉपिंग कर रहा है, उसके बाद मर्चेंट कंफर्म कर देता है ऑर्डर को। मर्चेंट कैसे कंफर्म करता है ऑर्डर को? इट सेंड्स कंफर्मेशन ऑफ द ऑर्डर टू द कस्टमर। पेमेंट इंफॉर्मेशन हो गई, कस्टमर को बताता है कि आपका क्रेडिट कार्ड सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गया है, आपका ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। मर्चेंट प्रोवाइड्स गुड्स और सर्विसेज, उसके अगेंस्ट मर्चेंट ने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। जो भी सर्विसेज थी हैं, जो आइटम्स खरीदे थे, सर्विसेज ये हो सकती हैं कि लेट से आपने कोई सॉफ्टवेयर मांगा है, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करने के लिए देते हैं। गुड्स ये हैं कि आपने जो गिफ्ट आइटम्स परचेज किए थे, एक फ्लावर बुक, एक वॉल क्लॉक और एक पेन, वो प्रोवाइड कर देता है। सो मर्चेंट जो है वो ऑर्डर के अगेंस्ट ऑर्डर डिस्पैच कर देता है और पेमेंट गेटवे जो है वो मर्चेंट को पैसे दे देता है। सो इस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन, इस तरीके से आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। सो आपने देखा कि सेट किस तरीके से काम करता है। सेट के लिए हमें डुअल सिग्नेचर्स की जरूरत होती है। डुअल सिग्नेचर से क्या मुराद है? कस्टमर क्रिएट्स डुअल मैसेजेस, 2 किस्म के मैसेजेस कस्टमर क्रिएट करता है।
एक है ऑर्डर इंफॉर्मेशन मर्चेंट के लिए और एक है पेमेंट इंफॉर्मेशन बैंक के लिए। ठीक है, देखें, याद रखिएगा, कार्ड होल्डर है, बैंक है, मर्चेंट है, पेमेंट गेटवे है। कार्ड होल्डर ने या कस्टमर ने इस मर्चेंट से कुछ चीजें परचेज करनी है, इसके पास इतना प्रिविलेजेस है या नहीं है, या इसके अकाउंट में इतने पैसे हैं या नहीं है, ये अकाउंट इसको प्रोवाइड किया बैंक ने। इसकी क्रेडिट कार्ड की नंबर वैलिड है या नहीं वैलिड, ये वेरीफाई करता है पेमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो इन चीजों के लिए डुअल सिग्नेचर की जरूरत है, और जो कस्टमर के साइड पर है। सो कस्टमर चूंकि दो तरह के मैसेजेस क्रिएट कर रहा है, इसलिए उसको दो किस्म के उसको सर्टिफिकेट्स भी चाहिए, दो किस्म के उसको सिग्नेचर्स भी चाहिए। पहला जो मैसेज वो क्रिएट कर रहा है वो ऑर्डर इंफॉर्मेशन है मर्चेंट के लिए, भाई मुझे 1 फ्लावर बुके, 1 वॉल क्लॉक और 1 पेन, ये उसने ऑर्डर प्लेस किया। सो कस्टमर से मर्चेंट की तरफ ऑर्डर इंफॉर्मेशन की एक मैसेज, और कस्टमर से पेमेंट इंफॉर्मेशन बैंक के लिए। ठीक है, सो बैंक के लिए, सो ये दो किस्म के मैसेजेस चूंकि कस्टमर ने जनरेट किए, इन दोनों मैसेजेस पर कस्टमर का डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, तो ये डुअल सिग्नेचर हो गए, दो सिग्नेचर हो गए, इसलिए हम इसको कहते हैं डुअल सिग्नेचर। नीदर पार्टी नीड्स डिटेल्स ऑफ द अदर। मर्चेंट को कस्टमर की डिटेल्स नहीं चाहिए, कस्टमर को मर्चेंट की डिटेल्स नहीं चाहिए कि उसके क्रेडिट कार्ड नंबर है या नहीं है, उस मर्चेंट का बैंक अकाउंट किसमें। सो इनकी डिटेल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच में आपका पेमेंट इंफॉर्मेशन गेटवे आ गया, बैंक आ गया, एक्वायरर आ गया, ये सारी चीजें वेरीफाई करती हैं। सो कस्टमर को ये इंफॉर्मेशन मर्चेंट से हिडन रहती है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन मर्चेंट से हिडन रहती है, और मर्चेंट की इंफॉर्मेशन कस्टमर से हिडन रहती है। बट मस्ट नो दे आर लिंक्ड। इंफॉर्मेशन हिडन रहना ये अलग चीज है, लेकिन ये एक्चुअली मर्चेंट भी और कस्टमर भी। मर्चेंट ये चाहता है कि कस्टमर लेजिटिमेट यूजर हो, कस्टमर ये चाहता है कि मर्चेंट लेजिटिमेट मर्चेंट हो। सो ये कौन इंश्योर करता है, ये लिंक है या नहीं है, ये इंश्योर करना सबके लिए जरूरी है। सो इसीलिए डुअल सिग्नेचर यूज किया जाता है। सो डुअल सिग्नेचर क्या होता है, एक है डिजिटल सिग्नेचर। डुअल सिग्नेचर एक्चुअली आपका ऑर्डर इंफॉर्मेशन और पेमेंट इंफॉर्मेशन की कंकैटिनेशन है। कंकैटिनेशन का मतलब यह है कि कुछ आपके पास नंबर्स हैं, उसके साथ आप दूसरे नंबर्स लगा देते हैं, तो आपने ये कंकैटिनेट कर दिया। लेट्स से आपके पास एक सीरियल नंबर था 1 2 3, दूसरा सीरियल नंबर था 4 5 6, तो जब इस सीरियल नंबर को आप इस सीरियल नंबर के साथ कंकैटिनेट कर देते हैं तो पूरा सीरियल नंबर बन जाता है 1 2 3 4 5 6। कंकैटिनेट आपने कर दिया, एक जहां पे खत्म हुआ दूसरा आपने वहां से शुरू कर दिया, इसको हम कंकैटिनेशन कहते हैं। तो जो पेमेंट ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन और पेमेंट इंफॉर्मेशन की जो हैश वैल्यूज हैं, उनका एक डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट किया जाता है। ठीक है, और ये डिजिटल सिग्नेचर जो है वो फिर आगे फॉरवर्ड किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर इज इक्वल टू इंक्रिप्शन ऑफ PRC, विच इज PRC, पेयर ऑफ C इज कस्टमर की प्राइवेट की है। तो कस्टमर की प्राइवेट की हैश वैल्यू ऑफ द पेमेंट इंफॉर्मेशन concatenated with the hash value of ordering information. So पेमेंट इंफॉर्मेशन और ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन इसको कंकैटिनेट किया, इसका हैश निकाला, साथ में प्राइवेट की के साथ इसको एनक्रिप्ट किया। सो ये आपका एक डिजिटल सिग्नेचर बनता है। डुअल सिग्नेचर की क्या जरूरत है? डुअल सिग्नेचर की जरूरत यह है कि सपोज दैट कस्टमर सेंड्स द मर्चेंट 2 मैसेजेस, असाइंड ordering information and assigned payment information. Then merchant passes the payment information onto the bank. अब हम एक सिनेरियो ये कंसिडर कर रहे हैं जहां पे हम ये डिस्कस कर सकें कि डुअल सिग्नेचर की क्या जरूरत है, एक सिग्नेचर से काम क्यों नहीं चलेगा। सो डुअल सिग्नेचर की जरूरत को समझने के लिए एज्यूम करें कि कस्टमर ने मर्चेंट को मैसेज भेजे हैं, जाहिर है 2 मैसेज आएंगे, एक ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन और एक साइंड जो है वो पेमेंट इंफॉर्मेशन। पेमेंट इंफॉर्मेशन मर्चेंट जो है वो बैंक को भेजता है, क्योंकि पेमेंट इंफॉर्मेशन मर्चेंट खुद से वेरीफाई नहीं कर सकता तो बैंक को भेजता है। इफ द मर्चेंट कैन कैप्चर अनदर ऑर्डर इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस कस्टमर,
the merchant could claim that this order information goes with the payment information rather than the original order information. अब देखें, डुअल सिग्नेचर इसलिए ज़रूरी है कि मैं एक कस्टमर था, आप एक मर्चेंट थे, मैं जब आपसे कोई चीज़ परचेज करता हूं तो मैं दो मैसेजेस आपको भेजता हूं, एक ऑर्डर इन्फॉर्मेशन मैंने खरीदना क्या और एक अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्टेड फॉर्म में। जब मैं पेमेंट इन्फॉर्मेशन आपको भेजता हूं तो पेमेंट इन्फॉर्मेशन चूंकि इनक्रिप्टेड है, आप उसको चेक नहीं कर सकते, तो आप बैंक से रब्ता करते हैं, बैंक से कहते हैं कि भाई मुझे बताओ कि ये कार्ड नंबर ठीक है या नहीं है। सो मेरे उस ऑर्डर के अगेंस्ट मैंने अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। मीनवाइल जब मेरी इंफॉर्मेशन बैंक से वेरीफाई हो रही थी तो मैंने एक और ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब जब दूसरा ऑर्डर प्लेस किया तो मर्चेंट के पास पेमेंट इंफॉर्मेशन एक ही है जबकि ऑर्डर उसके पास दो हो गए हैं। सो वो सेकंड ऑर्डर को पहली पेमेंट इंफॉर्मेशन के साथ कहीं गलती से ना मिला ले और ये दो ऑर्डर्स मिक्स ना हो जाएं, इससे बचने के लिए डुअल सिग्नेचर यूज किए जाते हैं। डुअल सिग्नेचर, द लिंकेज इन डुअल सिग्नेचर प्रिवेंट्स दिस। एक्चुअली जो आपके डुअल सिग्नेचर हैं वो इस चीज को प्रिवेंट करते हैं कि एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर के साथ कहीं मिक्स ना हो जाए, मर्ज ना हो जाए। डुअल सिग्नेचर कैसे बनते हैं, जैसे अभी मैंने बात की, आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ एंटिटीज हैं आपके पास, पेमेंट इंफॉर्मेशन, पीआई, ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन, ओआई, हैश फंक्शन जो कि एसएचए को यूज करता है, डबल डैश लाइंस जो है ये कंकैटिनेशन के फंक्शन को यूज कर रहा है, पीआईएमडी ये पेमेंट इंफॉर्मेशन मैसेज डाइजेस्ट को शो कर रहा है। जो आपने पेमेंट इंफॉर्मेशन दी थी ये भी प्लेन फॉर्म में नहीं जाती बल्कि ये इसका एक कोड निकाला जाता है, जो हमने मैसेज डाइजेस्ट कोड पढ़ा था तो मैसेज डाइजेस्ट निकाला जाता है। इसी तरह जो आपने ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन बनाई थी उसका भी एक कोड निकाला जाता है, ठीक है, उसका मैसेज डाइजेस्ट निकाला जाता है। इसके अलावा पेमेंट ऑर्डर मैसेज डाइजेस्ट, पेमेंट जो ऑर्डर हो गई है उसका भी मैसेज डाइजेस्ट निकाला जाता है। ई शो कर रहा है हमारा इंक्रिप्शन को, यूजुअली हम आरएसए इंक्रिप्शन यूज करते हैं, और पीआर ऑफ सी यूज कर रहा है कस्टमर्स प्राइवेट सिग्नेचर की को। सो डुअल सिग्नेचर आपका कब क्रिएट होता है, आप देख सकते हैं कि दो मैसेजेस गए हैं, एक है पेमेंट इंफॉर्मेशन, एक है ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन। पेमेंट इंफॉर्मेशन की हैश वैल्यू, हैश फंक्शन, ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन का हैश वैल्यू, इन दोनों का मैसेज डाइजेस्ट निकाला जाता है और कंकैटिनेट कर दिया जाता है। पीआईएमडी और ओआईएमडी को कंकैटिनेट कर दिया जाता है और उसका एक हैश वैल्यू निकाली जाती है। वो हैश वैल्यू आपकी बनाती है पेमेंट ऑर्डर मैसेज डाइजेस्ट। उस पेमेंट ऑर्डर मैसेज डाइजेस्ट पर इंक्रिप्शन अप्लाई की जाती है और कस्टमर की प्राइवेट की उस पर यूज की जाती है। आफ्टर यू अप्लाई द प्राइवेट की ऑन द पेमेंट ऑर्डर मैसेज डाइजेस्ट POMD, it actually creates a dual signature. Ultimately it results in a dual signature. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि डुअल सिग्नेचर किस तरीके से काम कर रहा है। सिग्नेचर वेरिफिकेशन में क्या होता है, मर्चेंट पोजेसेस डिजिटल सिग्नेचर, ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन, मैसेज डाइजेस्ट ऑफ पेमेंट इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक की ऑफ कस्टमर। ठीक है, सो मर्चेंट के पास डिजिटल सिग्नेचर है, ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन है, पेमेंट इंफॉर्मेशन का मैसेज डाइजेस्ट है और कस्टमर की पब्लिक की है। ये वो कंपेयर करता है दो चीजों के साथ इस फॉर्मूले के तहत। क्या है, एक है एच ऑफ पेमेंट इंफॉर्मेशन मैसेज डाइजेस्ट विद द हैश वैल्यू ऑफ ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन एंड प्राइवेट पब्लिक की ऑफ कस्टमर विद डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द कस्टमर। ठीक है, और उसको डिक्रिप्ट करता है। ये चीज मर्चेंट के पास आ गई है, इसको इवैल्यूएट कर रहा है, इसको कंपेयर कर रहा है। इफ बोथ आर इक्वल मर्चेंट हैज वेरीफाइड द सिग्नेचर। तो मतलब अगर डुअल सिग्नेचर और ये वैल्यूज अगर सेम आ गई हैं, इसका मतलब है कि सिग्नेचर वेरीफाइड है, ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। ठीक है, बैंक पोजेसेस डिजिटल सिग्नेचर, पेमेंट इंफॉर्मेशन मैसेज डाइजेस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन एंड कस्टमर पब्लिक की कैन कंप्यूट। ये चीज कंप्यूट किसने की है, ये आपको बैंक ने कंप्यूट करके दी है। यहां पे भी आप देख सकते हैं कि हैश वैल्यू ऑफ या हैश फंक्शन इज अप्लाइड ऑन द ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन एंड
concatenated with the order information message digest and again it is hashed. और फिर आप देख सकते हैं कि इसको कंप्यूट करने के बाद कंपेयर किया जाता है और अगर ये वैल्यू सेम है इसका मतलब ये है कि सिग्नेचर वेरीफाइड है, सिग्नेचर पर ट्रस्ट किया जा सकता है, सिग्नेचर जो है वो सस्पिशियस नहीं है और इस ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल किया जा सकता है. मजीद पेमेंट कैसे एक्चुअली प्रोसेस होती है, इसमें 3 फेजेस हैं: परचेज रिक्वेस्ट, पेमेंट ऑथराइजेशन और पेमेंट कैप्चर. ये 3 फेजेस, हर फेज में फर्दर डिटेल्स इन्वॉल्व हैं. ये डिटेल्स इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. लेट अस प्रोसीड टू द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर. Summary of today's lecture. In today's lecture, we talked about secure electronic transaction, where a customer, a card holder, want to make a purchase using his credit card. How this transaction will be carried out in a secure fashion, in a secure way, we have discussed in detail. We have also explored that there are different entities involved. For example, card holder, banker, payment card information system, payment gateway, acquirer, merchant. So these different entities are interconnected and these are involved in a transaction. So what is the role of each entity we have discussed in detail. Our discussion on SET will continue in our next lecture and we will actually see how the payment is processed. How the payment is processed. There are 3 phases, that is purchase request, payment authorization and payment capture. These are the phases or steps that are involved when a transaction is placed by a customer on the merchant websites. So the details of these particular phases will be discussed in our next lecture. I hope you enjoyed today's lecture and I'll see you with more details, with more interesting findings. Till then, bye for now and Allah Hafiz.